اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شو میں ہم ایسے سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آئیں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. اور ہم سب یہ ٹریولنگ بھی کرتے ہیں, سفر بھی کرتے ہیں, بہت ساری ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ایشوز ہو رہے تھے, لوگوں کے ڈاکیومنٹس پورے نہیں تھے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے جی آپ کا جو لگیج ہوتا ہے نا اس میں آپ کچھ ایسے سامان لے کر چلے جاتے ہیں جو کہ الاؤڈ نہیں ہوتے اور آپ کو اس کی انفارمیشن نہیں ہوتی. اب کیا کیا جائے, اس وقت بڑی پینکڈ ہو جاتے ہیں لوگ. تو کرنا کیا چاہیے؟ تو جی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس پاکستان کے ہوائی اڈوں کی حفاظت کا ایک اہم ذمہ دار ادارہ ہے اور اس کا بنیادی کردار ملکی اور غیر ملکی مسافروں, طیاروں, ہوا بازی کے اثاثوں کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنا ہے, جو کہ بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے. ASF کے فرائض میں ہوائی اڈوں کی نگرانی ہے, مسافروں ان کے سامان کی سیکورٹی چیکنگ ہے, پھر ساتھ ہی حساس علاقوں کی حفاظت اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنا جی شامل ہے. مسافروں کے حوالے سے ASF اصول و ضوابط کے مطابق ساتھ ہی ساتھ جی احترام, شائستگی اور غیر جانبداری کے ساتھ فرائض انجام دینے کی پابندی. ظاہر ہے لوگ جب وہاں پر تھوڑا سا ایسی سچویشن جاتی ہے, ٹینس سچویشن, اس کو اچھے سے ہینڈل کرنا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے. تو جناب بات کر لیتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر محمد کاشف اور سب انسپیکٹر صدرا آصف ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو فار ٹیکنگ آور ٹائم. کاشف صاحب آپ سے شروع کروں گا. سب سے پہلے ایک شخص جو ایک عام شہری جو ٹریول کر رہا ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں آنے کی دعوت دی. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس 1976 میں قائم ہوئی. اس کے قیام کا بنیادی مقصد پاکستان کے تمام ہوائی اڈوں, ہوائی جہازوں اور مسافروں کو کسی بھی قسم کی دہشت گردی, ہائی جیکنگ اور غیر قانونی مداخلت سے محفوظ رکھنا ہے. اس وقت ملک بھر کے 13 انٹرنیشنل اور 12 ڈومیسٹک ایئرپورٹس پر ASF اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. جہاں تک بات کی جائے ASF کی مینڈیٹ کی, تو الحمدللہ ASF از گارڈنگ ایئر بارڈرز آف پاکستان. مسافروں کے جان و مال کا تحفظ, ان کے سفر کو یقینی اور محفوظ بنانا ہی ASF کا مشن ہے. And alhamdulillah we are doing this mission with a well-trained, well-equipped and highly professional force. How nice is that? بالکل. ہمارے ساتھ جی انسپیکٹر صدرا افسر بھی موجود ہیں, سب انسپیکٹر. تھینک یو سو مچ صدرا. اور بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں جب اس طرح کے رول پلے کرتے ہوئے ہم خواتین کو دیکھتے ہیں اتنی اہم ذمہ داریوں پر. ذرا بتائیے گا پہلے تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ مردوں کی شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, تو خواتین کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ اور بھی اس میں خواتین ہیں مزید بھی پورے ملک سے ہوتی ہے, کیا اس میں طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل. اور یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہماری خواتین چاہے وہ آفیسرس ہیں یا آفیشیل, ASF کے اندر میجورٹی فورم کے اوپر وہ اپنا بہترین آؤٹ پٹ دے رہی ہیں. اور وہ صرف ایئرپورٹ سیکورٹی چیکنگ ہی نہیں بلکہ وہ فزیکل ٹریننگ, فائرنگ, ایمرجنسی ہینڈلنگ اینڈ رسپانس میں بھی مرد اہلکاروں کے ایکولی کمپیٹنٹ ہے. اور ماشاءاللہ سے ASF ایک فیڈرل ادارہ ہے, تو ملک کے ہر علاقے سے خواتین کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو پھر ASF میں خواتین کو ایکول اپرچونیٹیز ملتی ہے اور ان کو بہترین لیڈرشپ کے مواقع بھی ملتے ہیں. اپرچونیٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں اپنی مثال دوں گی. میری مختصر 8 سالہ سروس میں میں نے ASF کے اندر تقریباً ہر فورم کے اوپر میں نے ڈیوٹی کی ہے. میں نے سرویلنس فیلڈ, ایڈمنسٹریٹو اور آپریشنل فیلڈ کے علاوہ ایز انسٹرکٹر ASF میں اور پاکستان کوسٹ گارڈ کی بھی خواتین اہلکاروں کی تربیت کی ہے. اور ریسنٹلی یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ مشنز کے ساتھ میں نے کانگو میں پاکستان کی اور ASF کی بھی نمائندگی کی ہے. اور دیکھا جائے تو یہ بہت ایک آنر کی بات ہے کہ کس طرح ASF اپنی خواتین اہلکاروں کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہترین طریقے سے اس طرح آگے بڑھنے کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے. زبردست. ہاؤ نائس از دیٹ. کاشف صاحب ایک بات تو بتائیں, ویسے جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے میزبان ہوتے ہیں ایئرپورٹ سے, آپ لوگ بڑا وارملی ویلکم کرتے ہیں ہم لوگوں کو. وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر یہ میزبان جو ہے وہ فورس بن جاتے ہیں اور مہمان جو ہے وہ مجرم بن جاتے ہیں؟ انفارچونیٹلی کسی بھی مسافر کو سفر کرنے سے صرف 2 وجوہات کی بنیاد پر روکا جاتا ہے. اگر وہ ملکی یا ہوائی اڈے کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے چند مثالیں دینا چاہوں گا. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص کسی قسم کی اسمگلنگ میں ملوث ہوتا ہے, جیسے گولڈ, کرنسی یا نارکوٹکس, تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص فیک ڈاکومنٹس پریزنٹ کرتا ہے جیسے پاسپورٹس, ویزا یا بورڈنگ کارڈ, تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سیکیورٹی کے عمل کے دوران تعاون نہ کرنا, جھگڑا کرنا یا توڑ پھوڑ کرنا, اور یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے اور سفر سے بھی روک دیا جاتا ہے. اچھا صدرا, ہمارے یہاں تو پھر بھی اتنی سختی نہیں ہے, لیکن باہر جب آپ جاتے ہیں تو بھائی وہ تو آپ سے آپ کے گلاسز, واچ, پانی کی بوتل, ایوری تھنگ, جوتے اتروا لیتے ہیں, بیلٹ اتروا لیتے ہیں. تو یہاں پر اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں خاص طور پہ جی کہ ہم شوز کیوں اتروا لیے.
हमसे फला चीज क्यों उतरवा ली, तो ये जो है इसकी वजूहात क्या होती है? जी, ये बहुत एक वैलिड क्वेश्चन है और अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। तो इसके दो बुनियादी वजूहात है, एक सिक्योरिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस और दूसरा मेटल डिटेक्टर की हसासियत। एयरपोर्ट्स के ऊपर नसब जो हमारे वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर गए थे वो इस कदर एडवांस्ड और वो सेंसिटिव है कि वो मेटल की छोटी सी भी मिकदार को वो सेंस करते हैं और उसके ऊपर अलार्म बजाना वो स्टार्ट कर देते हैं। चूंकि जूते, घड़ियां और बेल्ट बकल्स उनमें अमूमी तौर पर मेटल होता है, तो जब तक मुसाफिर उनको अपनी बॉडी के साथ कैरी करता रहेगा अलार्म बजता रहेगा, जिससे सिक्योरिटी के अमल में ताखीर होगी। और दूसरी एक अहम चीज मैं क्लियर करना चाहूँ, अक्सर मुसाफिरों को शिकायत होती है कि वॉक थ्रू गेट से गुजरने के बाद हमारी बॉडी सर्च क्यों की जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि दे आर नॉट मेटल बट स्टिल दे आर डेंजरस इन एविएशन सिक्योरिटी, लाइक एक्सप्लोजिव्स हो गए, नार्कोटिक्स हो गए। और इन तमाम प्रोसीजर्स का मकसद किसी भी मुसाफिर को या किसी शख्स को तंग करना या जहमत देना बिल्कुल भी नहीं है। मुसाफिरों की अपनी सेफ्टी के लिए उनको इन्हीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। अच्छा, जो यहाँ शिकायतें कर रहे हैं ना, जब आप बाहर ट्रैवल करेंगे तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी, जिस तरह वहाँ चेकिंग होती है। काशिफ, मैं एक चीज बताइएगा, अब आजकल एआई का दौर है, फेस डिटेक्शन के लिए और दीगर असिस्टेंट के लिए एआई का बहुत इस्तेमाल हुआ है, इंटीग्रेट किया गया ऐसे सिस्टम में। सिक्योरिटी एयरफोर्स जो है हमारी एएसएफ जो है वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह एएसएफ यूजिंग दोज टेक्नोलॉजीज विच इज ऑलरेडी इन यूज सम ऑफ द मिडिल ईस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज। इसमें से एक्सप्लोसिव ट्रेस एंड वेपर डिटेक्टर्स भी शामिल हैं जो हमारे कई एयरपोर्ट्स पर हैं। पैसेंजर के लिए होल्ड एंड हैंड बैगेज स्क्रीनिंग मशीन्स, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज वी ऑलरेडी हैव सम ऑफ आवर एयरपोर्ट्स। इसके अलावा पैरामीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है जो हमारे कई एयरपोर्ट्स पर नस्ब है। ये वो तमाम टेक्नोलॉजीज हैं और इसके अलावा भी व्हीकल एंड कार्गो स्कैनर्स दे आर आल्सो अबाउट टू ऐड इन आवर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मैकेनिज्म। तो वक्त गुजरने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज को ऐड भी किया जा रहा है ताकि पैसेंजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे। इससे टाइम की बचत हो रही है वैसे? जी डेफिनेटली। बेसिकली एएसएफ की तवज्जो दो बुनियादी चीजों पर मरकूज होती है, वन इज सिक्योरिटी एंड अदर इज फैसिलिटेशन। यू कैन से दीज आर द टू विंग्स ऑफ अ सेम एयरक्राफ्ट। डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री सिचुएशन एंड थ्रेट अलर्ट्स वी हैव टू कीप अ वेरी बैलेंस अप्रोच इन बिटवीन दीज टू थिंग्स। सिद्रा, आप एक बात बताइएगा, एक मुसाफिर को घर से निकलने से पहले किन चीजों का ख्याल करना चाहिए और कौन सी चीजें ऐसी हैं कि एक दफा रीचेक कर लेनी चाहिए एयरपोर्ट आने से पहले? साइन में समझती हूँ अगर मुसाफिर घर से निकलने से पहले कुछ बुनियादी चीजों का वो ख्याल रखे तो वो एयरपोर्ट के ऊपर आके कभी भी नहीं परेशान होगा। सबसे पहले मुसाफिर अपने सफरी दस्तावेजात मुकम्मल रखे। घर से निकलने से पहले उनको चाहिए कि वो इंश्योर करे कि उनके आईडी कार्ड्स, उनका पासपोर्ट, उनका वीजा और टिकट्स उनके पास है और उनके दस्तरस में है। दूसरी अहम चीज, अपना सामान खुद पैक करके उनको प्रॉपर लॉक करें और इस चीज का आप यकीन कर लें कि आपके बैग में कोई भी मुश्तबा या कोई भी ममनुआ चीज ना हो। और तीसरी और सबसे अहम बात, अगर कोई शख्स आपको कोई पैकेट दे रहा है डेस्टिनेशन पे पहुंच के किसी को देने के लिए, इवन जानने वाला भी, बिल्कुल, तो अगर एयरपोर्ट के ऊपर आके उस पैकेट से कोई ममनुआ या मुश्तबा कोई चीज निकलती है तो फिर उसका जिम्मेदार भी वही शख्स है जो उसको कैरी कर रहा है। हमने देखा है एयरपोर्ट्स के पास बहुत सादे और बहुत बुजुर्ग लोगों को बहुत परेशान देखा है कि उनके सामान से कोई नार्कोटिक्स इस तरह से निकलती है जो किसी ने उनको आगे जाके देने के लिए दिए हो। सिद्रा, एक चीज मुझे बताएं, थोड़ा सा ये डिफरेंस भी बता दें, जो हैंड कैरी है और जो लगेज जो आपका जाएगा प्लेन में, ये इसमें क्या क्या अलाउ है? क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मैं लेंस सोल्यूशन यूज करती हूँ, बॉटल छोटी थी, उसमें सोल्यूशन भी बहुत कम था, लेकिन उस पर 120 ml लिखा था, उन्होंने वो डिस्कार्ड कर दी मेरे हैंड बैग से, हैंड कैरी से। जी है। तो इसमें अगर मैं उसे अपने लगेज में रखती तो वो काबिल कबूल होता? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हैंड कैरी में वही वाली चीजें जो आपके माया अशिया थे वो 100 ml से आप ज्यादा लेके नहीं जा सकते। बेशक आपके बोतल 100 ml से ज्यादा है लेकिन सोल्यूशन उसमें कम है, उस सूरत में भी आप उसको कैरी करके नहीं लेके जा सकते। हैंड कैरी में कोई भी शार्प आइटम्स, कोई स्पोर्ट गेट्स की चीजें, इस तरह के आइटम्स, कोई करोजिव आइटम्स वो आप हैंड कैरी में लेके नहीं जा सकते। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा मुसाफिरों के लिए। हमारे में से काफी ज्यादा लोग ट्रैवल कर चुके हैं लेकिन बेशुमार लोग हैं जो अभी ट्रैवल नहीं किए। तो हैंड कैरी वो सामान है जो आप अपने साथ जहाज में लेके जाते हैं, जिसका वजन तकरीबन 7 से 10 किलोग्राम होता है। होल्ड बैगेज जिसे हम कहते हैं वो सामान है जो आप अपने साथ जहाज में लेके जाते हैं। इसका वजन 20 से 30 किलोग्राम तक होता है।
प्लीज कर दें। डिपेंडिंग अपॉन योर जो आपने टिकट करवाई तो फिर वो सामान करवा देते हैं। लिक्विड एरोसोल जेल्स या परफ्यूम्स, उसके लिए जरूरी ये चीज है कि वो कंटेनर 100 ml से ज्यादा नहीं होना और चाहिए। जो एक्सटेंशन वो होती है ब्लो ड्राई, जी वो आप लेके जा सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो आपका कंटेनर है वो 150 ml का होता है, बेशक उसमें 50 ml हो, बट वो अलाउ नहीं है इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक। साथ साथ ये भी बता दें कि डॉक्यूमेंट्स कौन से आपने हैंड कैरी में रखने हैं और कौन से आप ऐसे हैं कि जो आप लगेज में रख सकते हैं, जो बार बार चेक होते हैं। जी बार बार चेक होने वाले डेफिनेटली, आप अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपकी टिकट्स आपके पास होनी चाहिए, आपकी आईडी कार्ड्स आपके पास होने चाहिए, कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आपके पास होने चाहिए। पैसेंजर गलती ये करते हैं कि इसमें से काफी ज्यादा चीजें अपने चेक बैगेज में या वो सामान जो जमा होने वाला उसमें रख देते हैं, फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और मैं आपसे उसमें ऐड कर रहा था जो हैंड कैरी की चीजें थी, उसमें एक और चीज भी अब बहुत जरूरी है। अक्सर पैसेंजर्स को पता नहीं होता कि किस क्वांटिटी में लेके जाना है। एक 1 लीटर बैग, प्लास्टिक रीसेलेबल बैग, उसमें 4 या 5 वो जो आपने 100 ml की चीजें हैं वो आप उस पर रख सकते हैं, और एक पैसेंजर सिर्फ एक वक्त में एक ही चीज बैग कैरी कर सकते हैं। इसको फॉलो करते हुए आप इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ट्रैवल करें, आपको कहीं परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा काशिफ साहब, इस तरह ये बताइएगा कि बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं हमारे मुल्क में, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी आते हैं, हम भी जब जाते हैं एयरपोर्ट पे, ASF के अहलकार, पहला इंटरेक्शन जब हमारा उनके साथ होता है, कमाल इंटरफेस होता है, यू नो, नौजवान और यूनिफॉर्म एंड सूटेड बूटेड, चाको चौबंद खड़े होते हैं, अपनी ड्यूटी के ऊपर मामूर होते हैं। ट्रेनिंग और सिलेक्शन के हवाले से बताइएगा कि क्या प्रोसेस होता है। सर आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। हमारी ASF का मोटो है फर्म एंड कर्टियस, वी आर प्रोटेक्टिंग एयरपोर्ट्स एंड वी आर सर्विंग पीपल। तो ये कोर प्रिंसिपल स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन, हम इसको फॉलो करते हैं। सिलेक्शन के बाद यही फॉलो होता है हमारी नेशनल अकेडमी फॉर एविएशन सिक्योरिटी में, उसमें 8 to 9 मंथ्स की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें इंग्रेन किया जाता है तमाम कैंडिडेट्स के अंदर कि वो फिजिकली इतने स्ट्रेंथन हो कि अपने एयरपोर्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, और मॉरली और एम्पैथेटिकली इतने स्ट्रांग हो कि लोगों की प्रॉब्लम्स भी समझ सकें। इसको फॉलो करते हुए हमारी सिलेक्शन का आगाज होता है। और ASF में सिलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि हमारा सिलेक्शन के लिए पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी है। आप अपनी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन बेस पे एडवर्टाइज पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ASF हर साल मुख्तलिफ कैटेगरीज में, जिसमें कॉर्पोरल्स, ASIs और ऑफिसर्स शामिल हैं, इनको ASF में इनरोल करता है। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आपको फिजिकल और मेडिकल क्लियर होना है, सेकेंडली आपने रिटर्न क्वालिफाई करना है, और थर्डली you have to clear an interview in a good marks. Right. After clearing all these things, you are capable enough to join ASF. क्या बात है। अच्छा सिद्रा, जरा सा मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ एक कल्चर है, देसी कल्चर है, बड़ा प्यारा कल्चर है, वो ये है कि जी फैमिली बॉन्डिंग बहुत है। कोई एक घर से जा रहा होता है तो सबको ये होता है, हज पे जा रहे हैं जी, उम्र पे जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, शादी ब्याह पे जा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हम सी ऑफ करने आपको जरूर आएंगे। तो वो काफी सारे लोग एक साथ भी उनको ड्रॉप ऑफ करने आ जाते हैं। अब ये प्रोटोकॉल क्या है कि एक जो पैसेंजर है, मुसाफिर है, जिसे ट्रैवल करना है, उसके साथ कितने लोग आ सकते हैं? ये अभी तक लोगों को क्लियर नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ आप बता दें। जी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि एक मुसाफिर के साथ 2 ही विजिटर्स होंगे। चूंकि एयरपोर्ट एक बहुत लिमिटेड एरिया है, तो हमारी कोशिश होती है कोई हमारा मेहमान जा रहा हो, हम पूरी फैमिली उसको सी ऑफ करने एयरपोर्ट चले जाए। और कुछ हज उम्रा सीजन में एक ही फर्द को रिसीव करने के लिए उनके फैमिली वाले पूरी एक बस पूरी एक एयरपोर्ट पे आ जाती है। तो उस सूरत हाल में एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रश हो जाता है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी के रिस्क बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। हमें कदर है लोगों के जज्बात की, लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है बाकी मुसाफिरों के लिए भी उनकी सफर में खलल का बायस बनता है। काशिफ साहब, बड़ा सादा सवाल मैं आपसे हमारे व्यूअर्स के लिए जानना चाहता हूँ कि आप जब बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं, फॉर इंस्टेंस कोई कनाडा जा रहा है, कोई लंदन ट्रैवल करना चाह रहा है, तो वहाँ पर जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, अजीज़ व अकारिब होते हैं, वो फरमाइशें करते हैं देसी घी ले आना, नहारी बनवा के ले आना, कोरमा ले आना। ये बच्चा जा रहा है तो अम्मा कहती है घर का खाना याद आएगा तो थोड़ा खाना में पैक करके तुम्हें दे देती हूं, अचार ले आना। तो मतलब इन चीजों के लिए क्या प्रोटोकॉल है, क्या SOPs है? सर हमारे बहुत से भाई बहन जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं, स्पेशली जो वर्कर्स हैं, वो अपने साथ देसी घी लेके जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है हमारे इसमें, जब वो कैरी करते हैं तो एक प्लास्टिक के बैग के अंदर उसको लेके जाते हैं, या बॉटल जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की है उसको एम्प्टी करके उसमें लेके जाते हैं। इंटरनेशनली जो डेस्टिनेशन कंट्री है उसकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, आप 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो वो एक सील कंटेनर के अंदर होना चाहिए जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स लिखे होने चाहिए।
ओरिजिनल फैक्ट्री सील बॉटल टाइप कोई हो, और सेकेंडली उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए उसकी। ओके। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देसी घी लेके जा सकते हैं, बट विद अ मिनिमम क्वांटिटी, नॉट इन अ कमर्शियल क्वांटिटी। मिनिमम क्या क्वांटिटी हो सकती है? आप कह लें 500 ग्राम्स और 1 किलोग्राम्स पर पैसेंजर आप लेके जा सकते हैं, बट इसकी शर्त ये है कि आपने एक फैक्ट्री सील प्रॉपर बॉटल होनी चाहिए, ना कि लूज पैकिंग में होना चाहिए। राइट। अच्छा, बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग, और लोगों को से बड़ी मालूमात मिलेगी। इसी तरह हमें बताइएगा, आप जैसे खवातीन जो एहलकार हैं उनकी पोस्टिंग पूरे मुल्क में होती है या कोई जहाँ जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ पर पोस्टिंग आप लोगों की होती है? चूँकि ASF एक फेडरल इदारा है, तो खवातीन की जो पोस्टिंग होती है वो पूरे मुल्क के एयरपोर्ट्स पर होती है। जो जैसे मेरा ताल्लुक चतराल से है, तो पोस्टिंग अगर हो जाए आपकी, तो आपकी मेजर एयरपोर्ट्स पे होती है, उन एयरपोर्ट्स पे जहाँ पे खवातीन के लिए अकोमोडेशन, उनके रहने सहने की जगह है, तो बिल्कुल पोस्टिंग्स होती हैं खवातीन की, और ये एक आपके फोर्स की एक डिमांड है। एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, देखिए ये तो ठीक है, जब सामान हमारा हम बोर्डिंग कर रहे हैं, सामान जा रहा है, बड़ी चेकिंग होती है, किसी का लगेज नहीं आता, वो बैठ के इंतजार कर मुसाफिर मेरा लगेज खिलवाएगा, ये एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है, बट वहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब इधर उधर फिर रहा होता है, मैं क्या करूँ, कोई उसे गाइडेंस नहीं होती, उनको आप क्या मशवरा देंगे? काफी लोग तो ट्रेवल्स करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स होते हैं उनको बेल्ट का अंदाजा नहीं होता कि किस बेल्ट पे सामान आ रहा है। आफ्टर लैंडिंग अगर वो अपनी बेल्ट पे खड़े होकर देखें, अक्सर जिनका बैग ही रह जाता है। जी, उसी भी मैं आने लगा था। तो सेकेंडली कई बार जो एयरक्राफ्ट है उसके वेट की वजह से सामान किसी वजह से रह जाता है, तो आप वहाँ पे जो भी आपकी एयरलाइन जिसमें आपने ट्रैवल किया हो, आप उसके जो अमला है उसको शिकायत नोट करवाएं, और डेफिनेटली विद इन अ डे और टू नेक्स्ट फ्लाइट पे जैसे ही सामान आते हैं वो आपसे खुद रब्ता आ जाता है। राइट। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप कंप्लेन रजिस्टर करवा के फॉर्म होता है जो फॉर्म फिल करके। कंप्लेन से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सिद्रा, फॉर इंस्टेंस अगर किसी शहरी को कोई फीडबैक देना है ASF को, या अपनी कोई कंप्लेन दर्ज करनी है, उसका क्या प्रोसेस होगा? साइन किसी मुसाफिर को या किसी शख्स को ASF से रिलेटेड कोई शिकायत है या कोई सजेशन आप देना चाहें, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर www.asf.gov.pk। उसके अलावा आप अपनी शिकायत हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर info@asf.gov.pk। और साथ ही आप सफ़र करते हुए अगर किसी मुसाफिर का कोई शिकायत है, कोई अगर आप सजेशन देना चाहे कि किस तरह से मजीद सिक्योरिटी बेहतर हो सकती है या फैसिलिटेशन बेहतर हो सकती है, तो आप ASF काउंटर्स के ऊपर सजेशन एंड फीडबैक रजिस्टर मौजूद है, वहाँ पे आप अपने शिकायत और सजेशन दर्ज करा सकते हैं। काशिफ, आपसे मैं ओवरऑल जानना चाहूंगी, आप क्या वैसे कहना चाहेंगे जो मुसाफिर हैं, जो पब्लिक है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अक्सर बेशतर ये भी होता है देर से पहुंचते हैं, मुकर्रर वक्त पर ही पहुंचते हैं, इस तरह की क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल? जी, आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर कुछ औकात ऐसे हैं जिस पे रश देखने को मिलता है। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि कई परवाजों के मुसाफिर एक ही वक्त में एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, तो पैसेंजर्स की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और चेकिंग के अमल के दौरान उनको लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। ASF अपनी पूरी कोशिश करती है अपने तमाम वसाइल को बुरवेकार लाते हुए, एक तो पैसेंजर स्क्रीनिंग अच्छा करे और ट्रैफिक के फ्लो को भी मेंटेन रखे। मुसाफिरों से सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो डोमेस्टिक फ्लाइट पे 2 घंटे पहले और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे 3 घंटे पहले अगर एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, तो सिक्योरिटी, पैसेंजर चेकिंग, ये तमाम मराहल बहुत ही पुरसकून अंदाज से मुकम्मल हो सकते हैं। लोग थोड़ी चालाकी ये करते हैं, कहते हैं हम देर से जाएंगे ना, हमारा सामान जल्दी मिल जाए। हाँ, ये करते हैं। तो जनाब, इसलिए आज का ये सेगमेंट डिजाइन किया गया ताकि आप लोगों को तमाम तो जो ट्रैवल एडवाइजरी है, सफरी हिदायत है, वो ASF का जो अमला है वो डायरेक्टली आके आपको बता दे, आपको एक बार क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच काशिफ एंड सिद्रा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें बहुत सारी आज मालूमात मिली, क्योंकि जैसे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, मैं समझ रही थी कि इस पास सोल्यूशन तो है ही नहीं, सोल्यूशन अगर लेके जाना है तो आपने बेदर्दी से फेंका, मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैंने कहा मैं क्या करूंगी, मैं लाइन सोल्यूशन ही ढूंढती रहूंगी। शुरू करें, वो थोड़ा सा था, नहीं इतना तो था ना कि मेरा यूज में रहता। चले, तो आप ही की इंफॉर्मेशन के लिए हमने आज का सेगमेंट डिजाइन किया था। आई होप कि आपको यहाँ से बहुत मालूमात मिली।